Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 11, the solar system. So in this chapter we shall learn about the different planets. How many planets are there in our solar system? We will know about in this chapter. Now let's look the chapter. Chapter 11, the solar system. Get start. What do you see in the sky during this daytime? बच्चों आप दिन में आसमान में क्या देखते हैं? The sun. Write it here. नेक्स्ट है आपका What do you see in the sky at night? रात के समय आप स्काई में क्या देखते हैं? The moon and the stars. Now students, let's start the chapter with our first topic, heavenly bodies. The sky comprises many heavenly bodies such as stars, planets, the moon and the sun. They seem all small because they are far away from us. The sun is also a star that is nearest to the earth. Therefore, we get maximum heat and light from the sun. बच्चों हमारे आसमान में बहुत सारी हेवनली बॉडीज होती हैं, स्टार्स होते हैं, सन होते हैं, मून होता है. बच्चों ये सब आपको छोटे इसलिए नजर आते हैं क्योंकि आपसे बहुत दूर हैं. सन भी एक स्टार है जो हमारे नियरेस्ट होता है अर्थ के. सबसे ज्यादा हमें हीट और लाइट सन से ही मिलती है. द सन हैज अ फैमिली ऑफ 8 लार्ज हेवनली बॉडीज. दे आर कॉल्ड प्लैनेट. सन की बच्चों 8 प्लैनेट्स की फैमिली होती है. उन प्लैनेट्स को बच्चों उन हेवनली बॉडीज को प्लैनेट्स कहा जाता है यानी ग्रह. The sun, the 8 planet and their satellites together form the solar system. सन उन 8 planets के साथ मिलके सैटेलाइट्स के साथ मिलके सोलर सिस्टम का तैयार करता है यानी सौर मंडल. Apart from these, there are many other bodies in the solar system. Our solar system is a part of the Milky Way galaxy. हमारे सोलर सिस्टम में और भी सारी हेवनली बॉडीज होती हैं. हमारा सोलर सिस्टम बच्चों एक मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. द मिल्की वे गैलेक्सी इज कॉल्ड द आकाश गंगा इन आवर कंट्री. मिल्की वे गैलेक्सी को हमारी कंट्री में क्या कहा जाता है? आकाश गंगा. नाउ लेट्स सी द प्लैनेट्स. Planets are the celestial bodies that revolve around the sun in their fixed orbit. In the order of their increasing distance from the sun, the planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Planets are non-luminous, but some appear to shine in the night sky because they reflect the light of the sun. प्लांट्स बच्चों सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो सन के अराउंड घूमते रहते हैं एक फिक्स्ड पाथ में. बच्चों उनकी इंक्रीजिंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सन के कितनी दूरी पे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उन्हें अरेंज करा है. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. प्लैनेट्स जो होते हैं नॉन ल्यूमिनस होते हैं. उनके खुद की लाइट नहीं होती. वो सिर्फ सन की लाइट की वजह से ही आपको चमकते हुए नजर आते हैं. Mercury, Venus, Earth and Mars are the inner 4 planets made of iron and rocks. These 4 planets are closer to the sun and are called terrestrial planets. बच्चों 4 terrestrial planets होते हैं Mercury, Venus, Earth and Mars जिनकी जो सरफेस है आयरन और रॉक से मिलके बनी है. Now students, this is the diagram of the solar system. Mercury हमारा फर्स्ट planet होता है जो सबसे पास है सन के और Neptune हमारा सबसे farthest planet होता है जो सबसे दूर है. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are the 4 outer planets made of frozen gases. जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून है ये हमारे फ्रोजन गैसेस से मिलके बने होते हैं जिसे हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं. These 4 planets are far away from the sun and are called gas giants. बच्चों ये बहुत दूर हैं सन से इसलिए इन प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं? गैस जाइंट्स भी कहते हैं. Now what is Mercury? Mercury is the planet closest to the sun. It is very hot during the day and very cold at the night. It takes 88 days to complete one revolution around the sun. Its revolving speed is the fastest of all the planet. It does not have any moon. Mercury सबसे पास होता है सन की. दिन के समय गर्म, रात के समय ठंडा होता है. इसे 88 डेज लगते हैं सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में. बच्चों इसकी सबसे ज्यादा रिवॉल्विंग स्पीड होती है इन कंपैरिजन टू अदर प्लैनेट्स. इसके सरफेस पे कोई भी मून नहीं है. Now let's see amazing fact. Venus is the only planet which spin east to west while other planets spin from west to east. Venus एक ऐसा planet होता है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है. बाकी सारे planet जो होते हैं वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करते हैं. Now next is Venus. Venus is the second planet from the sun and is the hottest planet in the solar system. Venus and Earth are almost of the same size. It is closest planet to the Earth. It is the second brightest object in the night sky after the moon and can be seen in the sky at dawn and dusk. That is why it is called the evening star and the morning star. It does not have any moon. Venus पे भी कोई मून नहीं होता है. ये सेकंड प्लैनेट आता है सन से सोलर सिस्टम में. ये सबसे गर्म प्लैनेट होता है. Venus और अर्थ का साइज सेम होता है बच्चों.
आप बच्चों रात के समय दूसरी चमकती हुई चीज जो आप देखते हैं वो वीनस ही होता है। इसे इवनिंग स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डॉन के समय और डस्क के समय दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है अर्थ। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ। Because of its unique distance from the sun, it is neither too hot nor too cold. It has water and air which are essential for the survival of living organism. The earth has one moon. अर्थ बच्चों थर्ड नंबर पे आता है हमारे सोलर सिस्टम में, ना ही ज्यादा ये दूर है सन से ना ही ज्यादा पास है, इसलिए इसका टेम्परेचर मॉडरेट होता है, इसलिए यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है और अर्थ का एक मून होता है। नाउ नेक्स्ट है आपका मार्स। Mars is the fourth planet from the sun. It is also called the red planet because it is covered with red soil and rock. It has two moons. मार्स बच्चों फोर्थ नंबर पे आता है सोलर सिस्टम में। इसे रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सरफेस पे रेड सॉइल और रॉक्स पाए जाते हैं और इसके टू मून्स होते हैं। नाउ लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट। ओलंपस Mons, the highest known mountain in the solar system, is situated on Mars. सबसे ऊंचा पहाड़ जो मार्स पे सिचुएटेड है उसका नेम ओलंपस Mons है। Now next is Jupiter. Jupiter is the fifth planet from the sun and is the largest planet in the solar system. Its rotation is the fastest of all the planets. Its mass is 318 times the mass of the earth. It has 63 moons. Jupiter हमारे सोलर सिस्टम में फिफ्थ नंबर पे आता है। ये हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम में। इसकी रोटेशन सबसे फास्टेस्ट होती है। इसका मास जो है 318 गुना ज्यादा होता है अर्थ के मास से और इसकी सरफेस पे 63 मून्स होते हैं। नेक्स्ट इज सेटर्न। सेटर्न इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट हैज रिंग्स अराउंड इट। टेक्स 30 years to complete one revolution around the sun. It has 62 moons. सैटर्न बच्चों सिक्स नंबर पे आता है और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है आफ्टर दी ज्यूपिटर बच्चों। और इस सैटर्न प्लैनेट के अराउंड रिंग्स होती हैं, गैसेस की रिंग्स होती हैं। इसे 30 साल लगते हैं सन के अराउंड एक चक्कर पूरा करने में और इसके सरफेस के ऊपर 62 मून्स होते हैं। नेक्स्ट इज यूरेनस। यूरेनस इज द सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। It is the only planet that spins on its side. It has around 29 moons. यूरेनस बच्चों सेवेंथ प्लैनेट आता है। ये सबसे ठंडा प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का और ये स्पिन करता रहता है अपनी ही साइड से और इसके सरफेस पे 29 मून्स होते हैं। नेक्स्ट इज नेपच्यून। नेपच्यून इज द एट प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट। इट इज वेरी कोल्ड ऑन नेपच्यून। इट हैज 13 नोन मून्स। नेपच्यून 8th नंबर पे आता है। ये आउटर मोस्ट प्लैनेट का एक हिस्सा होता है जो सबसे ठंडा प्लैनेट होता है। इसके सरफेस पे 13 मून्स होते हैं। Now students become a champ. Put a right for true and wrong for false statement. Venus is our closest neighbor. Venus जो होता है हमारा closest neighbor होता है। Yes, right. Next, the Earth is the biggest planet. No, wrong. Mercury is the hottest planet. Yes. Without the sun, there should be no life on the Earth. Yes, it is right. All stars appears as tiny point of light in the sky. Yes, it is right. Now next is dwarf planet. Our dwarf planet is similar to a planet but much smaller in size. Dwarf planet discovered so far are smaller than Mercury. As of now, there are 5 recognized dwarf planets in our solar system. The largest of these is Pluto. Dwarf planets may have moons of their own. For example, Pluto has a moon named Charon. Dwarf planets जो होते हैं बहुत पहले ही डिस्कवर हो चुके हैं जो स्मॉलर है हमारे मर्क्यूरी से। बच्चों ये 5 रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में जिसमें कि सबसे बड़ा है प्लूटो। प्लूटो का खुद का भी एक मून होता है जिसका नेम है चारोन। नाउ लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट। प्लूटो टेक्स 248 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। बच्चों प्लूटो को 248 अर्थ ईयर्स इतने साल लगते हैं सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिलेशंस। We see a lot of twinkling objects in the night sky. These twinkling objects are stars. They are huge luminous bodies made of hot gases and dust. They give out light and heat. Stars look very small because they are very, very far away from us. The sun is also a star. बच्चों आप आसमान में बहुत सारी चमकती हुई चीजें देखते हैं। जो ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स आप देखते हैं वो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं। ये एक ह्यूज ल्यूमिनियस बॉडी होती है जो खुद की लाइट एमिट करती है। एक किससे बना है? ये गैसेस और डस्ट का मिक्सचर है हॉट, जिसमें से लाइट निकलती है और हीट निकलती है। स्टार्स आपको बहुत छोटे इसलिए नजर आते हैं क्योंकि आपसे बहुत दूर होते हैं। सन भी एक स्टार का ही फॉर्म है। A constellation is a group of stars which make a recognizable pattern. Some well-known constellations are Ursa Major, the Great Bear, Ursa Minor and Orion. बच्चों constellation एक group of stars होता है जो स्काई में कुछ पैटर्न्स को बनाते हैं जिन्हें हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। Ursa Major, the Great Bear और Ursa Minor और Orion इसके एग्जाम्पल्स हैं। Can you tell one question? Why is Pluto not considered as a planet or called a dwarf planet? प्लूटो को प्लैनेट क्यों नहीं कहा, एक ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहा है? क्योंकि प्लूटो जो होता है रिवॉल्व करते हुए सन के अराउंड अपने पाथ से बाहर निकल गया था जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने उन्हें ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा।
Now next is comet. The solar system has some wandering bodies that travel around the sun in an elliptical path. There are big balls of dust and snow. सोलर सिस्टम में कुछ बॉडीज जो हैं सन के अराउंड घूमती हुई नजर आई इलेप्टिकल पाथ में, जो सिर्फ डस्ट और स्नो से बनी हुई थी. When these bodies come close to the sun, their melting snow and dust form a long tail behind them. जब वो सूरज के पास आई तो उनकी बर्फ जो थी पिघलनी स्टार्ट हुई और एक टेल की फॉर्म में नजर आई. These tail body are called comet. उन्हें ही हमने नाम दे दिया comet. We can see these comet periodically. हम इन comets को देख सकते हैं. For example, Halley's comet or comet Halley is the best known of the shorter period comet and is visible from the earth every 75 to 76 year. कॉमेट हेली जो है हर एक पीरियड में नजर आता है, मतलब हर एक 75 से 76 ईयर के बाद आपको नजर आएगा. नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड्स. अ बेल्ट ऑफ रॉक एंड डेब्रिस लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. दिस बेल्ट इज कॉल्ड द एस्टेरॉइड बेल्ट. These bodies orbit the sun like other planets. बच्चों एक आपको बेल्ट यानी कि एक पाथ नजर आता है रॉक का या डेब्रीज का मार्स और जुपिटर के बीच में, उसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं. बच्चों जो ये बॉडी होती हैं सन के अराउंड चक्कर लगाती रहती हैं प्लैनेट की तरह ही. नेक्स्ट आते हैं मीटेरॉइड्स. मीटेरॉइड्स और चंक ऑफ रॉक्स और मेटल्स थ्रोन अवे बाय द कॉलिजन ऑफ कॉमेट और एस्टेरॉइड्स. जब क्या होता है हमारा कॉमेट और एस्टेरॉइड आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, उससे रॉक्स और मेटल्स जो होते हैं उनके टूट जाते हैं, उसी को हम मीटेरॉइड्स कहते हैं. मैनी मीटेरॉइड्स फॉल डाउन टुवर्ड्स द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड गेट कंप्लीटली बर्न ड्यू टू द जनरेशन ऑफ हीट. जब वो अर्थ की तरफ गिरते हैं तो वो इतनी तेज स्पीड से गिरते हैं कि वो जल जाते हैं, उनमें से हीट निकलने लगती है. दे आर कॉल्ड मीटियोर्स व्हाइल फॉलिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड मीटेरॉइड्स व्हेन दे रीच द अर्थ सरफेस. जब वो गिर रहे हैं तो उन्हें हम मीटियोर्स कहेंगे और जब वो गिर चुके हैं उन्हें हम मीटेरॉइड्स कहेंगे. Now next are our planet Earth. Earth is the only planet that has all the features essential for sustaining life. Earth एक ऐसा planet है जिसमें सारे features हैं जिससे life exist कर सकती है Earth के ऊपर. In the very beginning of Earth history, this planet was a giant, red-hot, rolling and boiling sea of molten rocks. शुरुआत में Earth की हिस्ट्री में सिर्फ वो एक planet था, बड़ा planet था जो गर्म था, rolling था और जिसके ऊपर सिर्फ sea और molten rocks की boiling parts थे. इट कूल्ड, जैसे ही उसका सरफेस ठंडा होना स्टार्ट हुआ, डाउन स्लोली ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स एंड फॉर्म द सॉलिड लैंड एंड ओशन, जिसकी वजह से जमीन बनी और ओशंस यानी समुद्र बनने स्टार्ट हुए. द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. हमारी अर्थ 3 लेयर्स से मिलकर बनी हुई है. आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट, द मिडल लेयर इज कॉल्ड द मैंटल एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द कोर. सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं, उसके अंदर मैंटल, और लास्ट लेयर को हम कोर कहते हैं जो सबसे अंदर है. क्रस्ट इज द कूलेस्ट लेयर इन विच वी लिव. बच्चों क्रस्ट वो कूलेस्ट लेयर होती है जिसपे हम रहते हैं. इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स. क्रस्ट भी 2 टाइप्स में कैटेगराइज की गई है, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशनिक क्रस्ट. मैंटल इज द थिक लेयर ऑफ रॉक्स रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम. क्रस्ट के बाद मैंटल आती है जो मोटी लेयर होती है जिसमें आयरन और मैग्नीशियम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं. द कोर हैज इनर एंड आउटर कोर. इट इज सॉलिड इन द इनर कोर व्हाइल द आउटर कोर इज लिक्विड विद वेरी हॉट एंड हाई प्रेशर. जो आपका कोर है उसके भी 2 पार्ट्स है, इनर एंड आउटर. जो आपका इनर कोर है वो सॉलिड होता है, जबकि आपका आउटर कोर है वो लिक्विड होता है, उसमें हॉट एंड हाई प्रेशर का मैग्मा पाया जाता है. नाउ स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. क्रस्ट जो हार्ड होता है जिसपे हम रहते हैं, मैंटल एंड द इनर कोर एंड द आउटर कोर. नाउ नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ द अर्थ. द अर्थ कीप्स मूविंग कंटिन्यूअसली. इट मूवमेंट आर ऑफ 2 टाइप. हमारी अर्थ जो है कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है जिसकी वजह से उसके 2 मूवमेंट्स होते हैं. First, spinning on its axis. This movement is called rotation. The Earth completes one rotation in 24 hours. The rotation of the Earth causes day and night. बच्चों जो रोटेशन करती है अर्थ अपनी ही एक्सिस पे यानी अपनी ही जगह पे घूमती रहती है सेंटर से, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं. उसे एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स यानी कि एक दिन लगता है, 24 घंटे. Movement around the sun. This movement of the earth is called revolution. Our earth completes one revolution in 365 1/4 days, which is also called a solar year. The revolution of the earth causes the different season. जब अर्थ हमारी पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती है उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं. पृथ्वी को सन के चारों ओर घूमने में एक चक्कर पूरा करने में 365 डेज 1/4 डेज लगते हैं, जिसे हम सोलर ईयर भी कहते हैं, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव होता है. नाउ नेक्स्ट है हाउ आर डे एंड नाइट कॉज. The earth rotates on its axis. Rotation means spinning around itself. The earth takes 1 day or 24 hours to make one full rotation about its axis. Then earth rotates about its axis from west to east. That is why on the earth the sun seems to rise from the east to west.
नाउ स्टूडेंट्स, जो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती रहती है, रोटेशन का मीन्स होता है स्पिनिंग, यानी जैसे लट्टू घूमता रहता है अपनी एक्सिस पे, वैसे ही अर्थ घूमती रहती है। वो एक दिन 24 घंटे लेती है एक चक्कर पूरा करने में, अपनी एक्सिस पे घूमने में। बच्चों वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसकी वजह से आपको सन जो है ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता हुआ और वेस्ट डायरेक्शन में सेट होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है रोटेशन ऑफ द अर्थ। The rotation of the earth causes day and night. When we are on the side of the earth that is facing the sun, we have daytime. As the earth continues to rotate, we are moved to the side facing away from our sun and we have night time. When the part of the earth we live in has day, the part of the earth on the opposite side has night. America and India are located on the opposite side of the earth. This is the reason why it is night time in America when it is daytime in India. बच्चों, जिस तरीके से अर्थ रोटेट करती है उसी की वजह से दिन और रात होते हैं। अर्थ के जिस हिस्से पे सूरज की लाइट पड़ती है घूमते हुए वो हमारा डे टाइम होता है। जो हमारा हिस्सा दूर होता है, सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाती, वो हमारा नाइट टाइम होता है। और फिर हमारा जैसे ही रोटेट करते हुए अपनी पोजीशन को चेंज करती है, नाइट टाइम डे टाइम में चेंज हो जाता है और डे टाइम नाइट टाइम में चेंज हो जाता है। इसी वजह से अर्थ, अमेरिका और इंडिया जो है दोनों ही डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड है हमारे अर्थ की, जिसकी वजह से जब अमेरिका में दिन होता है, इंडिया में रात होती है। नाउ नेक्स्ट आता है हाउ आर सीजन कॉज्ड। We have learned that the axis of the earth is not straight but slightly tilted. This tilt causes different parts of the earth surface to receive varying amounts of sunlight throughout the year. बच्चों, आपको पता है अर्थ जो है, अर्थ का एक्सिस यानी जो रास्ता होता है उसका स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा टिल्टेड यानी टेढ़ा होता है, जिसकी वजह से उसे पूरी सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती और कुछ पार्ट्स पे उसकी रोशनी पहुंच ही नहीं पाती पूरे साल में। इसी की वजह से मौसम में बदलाव होता है। As the earth revolves around the sun, the part of the earth leaning toward the sun keeps changing too. जैसी अर्थ रेवोल्यूशन करती है, सन के चारों ओर घूमती है, जो अर्थ का जो पार्ट सन के करीब होता है, when the northern hemisphere faces the sun, the southern hemisphere leans away from the it. During this time of year, it's summer in the northern hemisphere and winter in the southern hemisphere. जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के करीब होगा वहां पे हमारा समर हो जाएगा, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर दूर होगा सन से, वहां पे हमारा विंटर सीजन हो जाता है। As the earth continue revolving along its orbit around the sun, in a few months, the southern hemisphere faces the sun, causing the northern hemisphere to face away from the sun. During this time of the year, it is summer in the southern hemisphere and winter in the northern hemisphere. इस तरीके से जब रेवोल्यूशन के दौरान वो अब दूसरा हिस्सा सन के पास आ जाता है, तो वहां पे हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड हो जाती है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हाइल इट इज ऑर्बिटिंग द सन, ऑटम एंड द स्प्रिंग सीजन आर आल्सो सीन। अर्थ की पोजीशन के हिसाब से अर्थ का जो पार्ट हमारा सन के पास होता है उसमें हमारी गर्मी हो जाती है, और जो पार्ट हमारा दूर होता है वहां पे ठंड हो जाती है। इसी की वजह से ऑटम और स्प्रिंग सीजन भी होते हैं। द अर्थ इज हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर। हमारी अर्थ जो है हॉरिजॉन्टली टू इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू, उस इमेजिनरी लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। Place along the equator receive nearly equal amount of sunlight throughout the year, so there is no distinct summer or winter in such places. It is usually hot most of the time. बच्चों, इक्वेटर जो है ज्यादातर हमारे सूरज के पास ही रहता है, इसलिए ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंड रहती है, बल्कि ये हमारा फिक्स्ड हॉट एरिया होता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज गैलेक्सी, मीन्स a huge collection of billion of stars and their solar system gas and dust. गैलेक्सी बच्चों जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, सोलर सिस्टम होता है, गैस पार्टिकल्स होते हैं और डस्ट होती है। Planet are heavenly body that move around the sun in a fixed part and does not have heat or light of its own. बच्चों, प्लैनेट हमारी एक हेवनली बॉडी होती है जो हमारे सन के अराउंड घूमती है एक फिक्स्ड पाथ में, जिसकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। कॉन्स्टलेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच मेक अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। कॉन्स्टलेशन स्टार्स के पैटर्न को कहते हैं जिसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। Dwarf planet are heavenly body which resemble a planet but is much smaller. Dwarf planet एक heavenly body होती है जो planet की तरह दिखाई देती है मगर ये बहुत छोटी होती है। Rotation movement of the earth on its imaginary axis. Rotation का मतलब होता है अर्थ का मूव करना अपनी imaginary axis के थ्रू। Now next is revolution, movement of the earth around the sun in its orbit. रेवोल्यूशन का मतलब होता है पृथ्वी का चारों ओर, पृथ्वी का घूमना सन के चारों ओर, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। नाउ स्टूडेंट, लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट। प्लैनेट्स जो होते हैं सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं एक फिक्स्ड पाथ में। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। जुपिटर फिफ्थ नंबर पे आता है सन से। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। आउटरमोस्ट लेयर को अर्थ की हम क्रस्ट कहते हैं। कॉमेट आर लार्ज बॉल ऑफ डस्ट एंड स्नो। कॉमेट जो होते हैं बड़े बड़े बॉल्स होते हैं गैस के, डस्ट के और स्नो के। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। सारे ही प्लैनेट्स में से अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स डू एक्सरसाइज। डू एक्सरसाइज ए।
Take write the correct option. First, the solar system has 8 planets. B is the right answer. It has a natural satellite of the earth. Moon. B is the right answer. It is the smallest planet in the solar system. कौन सा होता है बच्चों? Neptune. C is the right answer. Halley comet passes by the earth after every 76 years. C is the right answer. It is the largest planet in the solar system. Jupiter. C is the right answer. Now student, let's do B exercise. Guess and write the names of the heavenly bodies with the help of the given hints. It is the closest planet of the sun. बच्चों, Mars, Mercury. Next, it is also called the red planet Mars. It is the hottest planet in the solar system, Venus. It has water and air, Earth. Next, its rotation is fastest of all the planets. बच्चों, इसकी rotation सबसे fastest होती है, Uranus. Now let's do exercise C. Fill in the blanks. First, planets are the celestial bodies that revolve around the sun. Mercury, Venus, Earth, and Mars are the 4 interior planets made up of dust. So student, write dust and gases. Dash take the least time to complete one revolution. किसे सबसे कम टाइम लगता है one revolution complete करने में? Uranus. The outermost layer of the earth is called, the outermost layer को हम क्या कहते हैं? Crust. Dash is the thick layer of rocks rich in iron and magnesium. Thick layer of rocks को हम क्या कहते हैं? जिसमें mantle. Now student, let's do exercise B. Match the column. Column A को हम column B से match करेंगे. Neptune बच्चों coldest planet होता है, सबसे दूर है हमारे सन से. फर्स्ट को मैच करेंगे E से. Venus हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट होता है, सेकंड को मैच करेंगे A से. अर्थ हमारा लिविंग प्लैनेट होता है, थर्ड को मैच करेंगे B से. मार्स रेड प्लैनेट होता है, फोर्थ को मैच करेंगे C से. जुपिटर हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट होता है, फिफ्थ को मैच करेंगे D से. नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.